السلام علیکم ناظرین، پروگرام نیوز ریویوز میں خوش آمدید۔ میں ہوں عرفان حیدر۔ ناظرین، کل سے ملک کی فضا سوگوار ہے۔ مسجد و امام بارگاہ میں خودکش دھماکے کے بعد شہید ہونے والوں کی آہو بکا اب بھی سنائی دے رہی ہے۔ درجنوں نمازی شہید، سینکڑوں زخمی ہیں، لیکن اس کے بڑی پیش رفت بھی ہوئی ہے۔ خودکش حملہ آور کا افغان ماسٹر مائنڈ گرفتار کر لیا گیا ہے۔ داعش سے تعلق کا انکشاف ہوا ہے۔ 4 سہولت کار بھی قانون کے شکنجے میں ہیں۔ تحقیقات میں چونکا دینے والی تفصیلات سامنے آ گئی ہیں۔ 4 کلو بارودی مواد، بال بیرنگ سے بھرا جیکٹ، دھماکے سے پہلے فائرنگ، نیشنل فورنزک ایجنسی اور نادرہ شواہد کی جانچ میں مصروف ہے۔ ادھر سیاسی محاذ پر بھی طوفان۔ وفاقی وزیر اطلاعات عطا طارق کا بڑا الزام، ملک میں واپس آنے والی دہشت گردی کے پیچھے پی ٹی آئی ہے۔ بانی پی ٹی آئی کی پالیسیوں کو موجودہ حالات کا ذمہ دار قرار دے دیا ہے۔ اور وزیر داخلہ محسن نقوی کا 2 ٹوک پیغام، مساجد پر حملہ کرنے والے سفاک درندے ہیں، غیر ملکی پشت پناہی سے دہشت گردی کی جا رہی ہے، ملوث عناصر کو انجام تک پہنچایا جائے گا۔ سوال یہ ہے کہ کون ہے اصل ماسٹر مائنڈ؟ دہشت گردی کے نیٹ ورک کہاں تک پھیلے ہوئے ہیں؟ اور کیا پاکستان ایک بار پھر پرانے خطرناک دور میں داخل ہو رہا ہے؟ ان تمام حقائق، انکشافات اور تجزیے کے ساتھ آج ہم بات کریں گے۔ سبین یونس صاحبہ تحریک انصاف کی رہنما ہیں، وفاقی دارالحکومت اسلام آباد سے ہمارے ساتھ جڑی ہیں۔ سبین صاحبہ، بہت شکریہ۔ جو کچھ ہوا وفاقی دارالحکومت میں گزشتہ روز، ایک اندھوناک سانحہ جس نے پورے ملک کی فضا سوگوار کر دی ہے، اور یقیناً یہ کسی 1-2 روز کی وجہ سے ایسا نہیں ہوا ہے۔ سالہ سال سے جو دہشت گردی پاکستان میں ہوتی رہی ہے، جو دہشت گرد افغانستان کی سرزمین استعمال کرتے ہیں، بھارت فنڈنگ کرتا ہے، اس میں اب کوئی دو رائے نہیں ہے۔ اس کو دیگر ممالک بھی اب مان رہے ہیں، ایون کہ اقوام متحدہ کے پلیٹ فارم پہ بھی پاکستان کئی دفعہ ثبوت اس حوالے سے دے چکا ہے۔ تو آپ سمجھتی ہیں کہ اس دہشت گردی کا خاتمہ، جو تحریک انصاف کا موقف تھا کہ ان دہشت گردوں کے خلاف آپریشن نہیں ہونا چاہیے، بات چیت ہونی چاہیے، کیا اب بھی تحریک انصاف سمجھتی ہے کہ بات چیت ہی مسائل کا حل ہے، یا ان کا مکمل کلا کما کرنا ہوگا؟ بہت شکریہ آپ کا۔ پہلی بات تو یہ کہ دیکھیں، اتنا یہ افسوسناک واقعہ ہوا کہاں پہ ہے؟ اسلام آباد میں جہاں پہ ہر چیک پوسٹ پہ روکا جاتا ہے۔ میں آپ کو بتاؤں، ہر چیک پوسٹ پہ روکا جاتا ہے۔ ہم یعنی کہ کوئی پی ٹی آئی کا جھنڈا لے کے نکل جائے گا نا تو وہ پکڑا جائے گا راستے میں۔ یہ میں آپ کو بتا دوں، دکھ کی بات ہے، افسوس کی بات ہے، اور ہم لوگ بہت غم میں ہیں اس وقت۔ میں ہم نے جو مناظر دیکھے ہیں نا، ہمارے کیپٹل سٹی ہے نا، اور اتنا بڑا یعنی کہ کتنا بھی بارودی مواد لے کے آئے ہوں گے وہ لوگ، کہاں سے گزرے ہوں گے۔ تو یہ دکھ ہوا مجھے یہ سارا کچھ دیکھ کے کہ اتنی پولیس ہے، سب کچھ ہے۔ شاید پولیس اگر جو ہے نا اس وقت اس طاق میں ہوتی ہے کہ کس وقت گرفتار کرے پی ٹی آئی کے لوگوں کو۔ 8 فروری سے پہلے ابھی کتنے لوگوں کو گرفتاریاں ہو رہی ہیں، عہدیداروں کو گرفتار کیا جا رہا ہے۔ اگر ان کی جو ہے نا فوکس اس چیز پہ ہوتا تو شاید کہیں بھی پکڑا جاتا۔ خودکش حملہ آور، دکھ ہوتا ہے، ہمیں افسوس ہوتا ہے، ہمارا ملک ہے، ہمارے شہری ہیں، معصوم لوگ چلے گئے، کتنے جوان ہمارے چلے گئے، کیا آنکھوں میں خواب ہوتے ہیں ان کے۔ بہت تکلیف ہوئی۔ تو دوسری بات یہ کہ بہت ساری آپ نے باتیں کی، دہشت گردی پی ٹی آئی نے تو کبھی بھی نہیں کہا، پی ٹی آئی تو ہمیشہ دہشت گردی کے خلاف رہی، اور پی ٹی آئی کے دور میں ہمارے پاس تو اسٹیٹسٹکس ہے، پی ٹی آئی کے دور میں سب سے کم دہشت گرد حملے ہوئے۔ وہ اس لیے دہشت گرد محترمہ، اس لیے دہشت گردی کم ہوئی تھی کہ 2016 کے آپریشن کے بعد وزیرستان آپریشن تھا، یہ افغانستان بھاگ گئے تھے۔ جی اچھا، میں ابھی آپ کو بتا دیتی ہوں، 2016 کے آپریشن کی ہم بات کر رہے ہیں، تو 2016-17 میں بہت سارے جو ہیں آپریشن تو دیکھیں ہماری پوری تاریخ بھری پڑی ہے، کتنے آپریشن ہوئے ہیں، اور آپریشن سے کسی کو انکار نہیں ہے کہ آپریشن ہو۔ لیکن آپ صرف جو جس بات پہ پی ٹی آئی کو اعتراض ہوتا ہے وہ اعتراض یہ ہے کہ آپریشن ہو لیکن ٹارگیٹڈ آپریشن ہو۔ ایسا نہ ہو کہ لوگوں کو، آپ دیکھیں آپ نے لوگوں کو کیا ڈسپلیس کیا، سب کچھ ہوا، اس کے بعد دوبارہ آ جاتے ہیں۔ آپ کو کوئی اسٹریٹجی، آپ خود سوچیں کہ آپ کو اسٹریٹجی چینج کرنے کی ضرورت ہے یا نہیں ہے۔ آپ تیرا کے معاملے میں ہی دیکھ لیں، کیا فائدہ ہوا؟ تیرا کے لوگوں کو پہلے وہاں سے کہا گیا کہ آپ نکلے، پھر کہا گیا کہ ہم نے نکالا نہیں ہے، اتنی کنفیوژن تھی۔ آپ بتائیں، اس بندے کو کہہ دیں آپ گھر چھوڑ کے چلے جاؤ، یہ کوئی اتنا آسان نہیں ہوتا۔ اور اس طرح یہ بھی، اور ہم نے کئی ایسے واقعات دیکھے جن میں پورے جو مدرسے تھے، جیسے اس مدرسے میں مجھے یاد ہے ڈرون حملہ ہوا تھا، 80 بچے مر گئے تھے۔ ہم ان چیزوں کے خلاف ہیں۔ ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ ہم کوئی دہشت گردوں کے ساتھ ہیں کہ ان پہ آپریشن نہ، اللہ نہ کرے کبھی ہم ان کے ساتھ ہوں۔ ہم تو چاہتے ہیں یہ جو بھی داعش ہو، ٹی ٹی پی ہو، یا کوئی اور دہشت گرد جو افغانستان سے آپریٹ ہو رہے ہیں پاکستان کے خلاف، یا بی ایل اے ہو، تحریک انصاف انہیں دہشت گرد کہتی ہے؟
तहरीक इंसाफ ने कब उन्हें दहशतगर्द नहीं कहा? पता नहीं आप लोगों ने ये क्यों नहीं, मैं शफी जान को टीवी पे सुन चुका हूँ, वो कहते हैं नहीं वो उनमें कुछ लोग ऐसे हैं और कुछ लोग वैसे हैं, वो क्लियर कट नहीं कह रहे थे कि दहशतगर्द है। प्लीज ऐसी कोई बात देखें, ये बात नहीं है। मुझे सुनाया उन्होंने कब ऐसा कहा है? ऐसी कोई बात नहीं है, किसी ने भी ये नहीं कहा कि ये उन्होंने एक दफा नहीं 2 से 3 दफा मुख्तलिफ प्रोग्राम्स में कहा है। नहीं, मैं आपको आप मेरी बात समझे। बात सिर्फ इतनी सी है कि हम दहशतगर्द, हम ये नहीं कह रहे कि जो दहशतगर्दी वो करे उनके साथ बैठ जाओ। किसने बात इतनी सी होती है कि मुज़ाकरात तो हर दौर में किए जाते हैं। मुझे बताएं, मैं आपका मौक़िफ़ आगे चल के लेता हूँ इस हवाले से। आप जरा हुकूमत से भी जानने की कोशिश करें ना कि अब तक क्या पेशरफ्त हुई है। जलाल खान साहब मुस्लिम लीग नून के रहनुमा हमारे साथ मौजूद है। सर, अब तक इस बम धमाके के बाद क्या पेशरफ्त हुई है? मुख्तलिफ सोशल मीडिया पे कयास आराइयाँ हो रही हैं कि गिरफ्तार हो गया है शख्स, उसके जो सहूलतकार हैं वो भी गिरफ्तार हो गए, और इस किस्म के वाक़यात वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद तक पहुंच जाना KPK से एक दहशतगर्द का, आप नहीं समझते कि अलार्मिंग है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया, आपने प्रोग्राम में ले लिया है। अच्छा, ये इस तरह है कि बदकिस्मती से हम हमारा एक सूबा जो है ऐसे एक इंतशारी टोला की जो है जिद में आया हुआ है कि यार आपकी वॉइस जो है डबल मुझे वापस सुनाई दे रही है यार, इट्स वेरी अनोइंग। आप मुझे सुन पा रहे हैं? मेरी वॉइस जो है डबल वापस मुझे सुनाई दे रही है। अच्छा, चले मैं रिकनेक्ट करवा देता हूँ, कोशिश करता हूँ मैं रिकनेक्ट करवा देता हूँ आपको, ताकि दोबारा ये प्रॉब्लम ना आए। आवाज आपकी नहीं आ रही है जी। तो कोशिश करते हैं, आपको रिकनेक्ट करते हैं। आपको आवाज़ डबल आ रही है, आप ये कह रहे हैं। तो मैं इस हवाले से सबीन साहबा आपसे जानना चाहूँगा कि KPK में 2016 का ऑपरेशन हम देखते हैं मुस्लिम लीग नून के दौर में हुआ, उसके पहले स्वात ऑपरेशन 2009 में हुआ, कौमी असम्बली से मंजूरी करवाई गई, पीपल्स पार्टी के दौर में हुआ था, जिसके बाद स्वात भी क्लीन हो गया था, वजीरिस्तान भी क्लीन हो गया था, और उसके बाद हम एक हुकूमत आती है, उसके वजीर आजम को टीवी पे बयान वीडियो मौजूद है, एक इंटरव्यू के दौरान वो एक इंटरनेशनल मीडिया से भी और पाकिस्तानी मीडिया से भी कहते हैं कि 40,000 जंगजू, चूंकि अमेरिका वहां से इनखला कर गया है, अफगानिस्तान रखना नहीं चाहता, वो हमारे लोग हैं, हम उन्हें रीसेटल करेंगे। तो इस बयान के बारे में क्या कहेंगे? ये जो आज अता तारड़ साहब कह रहे हैं कि दहशतगर्दी तो PTI लेकर आई है, तो अगर उस बयान को सामने रखे तो किसी हद तक तो बात दुरुस्त लगती है। मैं आपको बता देती हूँ, ठीक है। PTI ने कह दिया रीसेटल करेंगे, क्या PTI रीसेटल कर सकी? उसके बाद PTI की हुकूमत, पहली बात है कि जो कुछ भी उस वक्त हुआ था वो इदारों के साथ मिलकर कंसेंसस के साथ हो रहा था, ठीक है। जो डिस्कशन चल रही थी ऐसा नहीं था, एक पेज पे थे सारे, आपको याद है ना ये बात? जी बिल्कुल अच्छी तरह याद है, और ये भी याद है मुझे कि उस वक्त बानी PTI ने, जो वजीर आजम थे इस वक्त जेल में, उन्होंने कहा था कि जो भी फैसले मैं कर रहा हूँ इसका जिम्मेदार मैं हूँगा। ये भी उनका वीडियो बयान मौजूद है। अच्छा मेरी बात सुन लें। पहली बात यह है कि इदारों के साथ मिलकर ये बात, जो भी बात हुई थी, ठीक है, उसके बाद PTI की हुकूमत चली गई थी, और सारी मीटिंग जो थी ना वो बाद में हुई थी। अगर आप भूल रहे हैं, ये सारी रीसेटलमेंट की जो बातें हुई थी वो PTI की हुकूमत के जाने के बाद हुई थी। ये आप लोगों को पता नहीं क्यों भूल जाता। PTI की हुकूमत 2021 में इनखला किया अमेरिका ने, उसके बाद, उसके शुरू में चली गई थी, उसके बाद ये रीसेटलमेंट ये होती रही है, उसके बाद ये मीटिंग होती रही है, ठीक है। या आपको शायद आप ये भूल गए हैं, पहली बात ये। उसके बाद मुझे आप बता दें कि PTI की हुकूमत को तो गए भी 4 साल हो गया ना, ठीक है। अब तो 4 साल हो गए PTI की हुकूमत को, आपने खुद क्यों नहीं सब कुछ कर लिया? आप तो इसीलिए आए थे ना हुकूमत। मौजूदा हुकूमत की तो पॉलिसी ये है कि इनका कला कमा करना है, और वो टारगेटेड ऑपरेशन कर रहे हैं, और बयानात भी यही देते हैं कि हम कर रहे हैं। तो टारगेटेड ऑपरेशन तो वो तो कह रहे हैं ना कि हम हर हाल में ऑपरेशन कर रहे हैं, चाहे कोई माने या ना माने। तो ऑपरेशन तो उन्होंने ये कहा है ना कि कोई माने या ना माने, हम ऑपरेशन हर हाल में कर रहे हैं। हम तो सिर्फ ये बात कर रहे हैं कि हम देखें, हमारी वो ऑपरेशन करना तो उनका, वो तो कह रहे हैं हम करेंगे, चाहे जो सूबाई हुकूमत है वो कुछ भी कर ले। लेकिन मुझे एक बात बताएं, देखें, दूसरी बात ये कि सूबाई हुकूमत ने, सुहेल आफरीदी ने, जैसे ही वो आए हैं उन्होंने सबसे पहले जिरगा कराया, ठीक है। ये जो भाई कह रहे थे कोई इंतशारी थे, सारे इंतशारी थे, वो सारी पार्टियों के लोग शामिल थे उस जिरगे में। उन्होंने ये क्यों कहा कि इस तरह का मिलिट्री ऑपरेशन नहीं होना चाहिए? उन्होंने ये कहा कि टारगेटेड जरूर हो। उन्होंने इस तरह की बात कही थी कि जो आप एक ऐसा कर देते हैं जो कोलैटरल डैमेज जिसमें होता है वो ना हो। ठीक है, मतलब तहरीक इंसाफ का मौक़िफ़ ये है कि ऑपरेशन टारगेटेड हो, हमें प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आम लोगों को तकलीफ कम से कम हो, आम लोगों को तकलीफ कम से कम हो। जलाल खान साहब,
मैं हुकूमत का मौक़िफ़ ले लूं। जलाल खान साहब हमारे साथ मौजूद है, आई होप कि आप सही सुन पा रहे होंगे। जलाल खान साहब, ये इस दहशतगर्दी का अफसोसनाक वाक़या, एक तासुर ये भी दिया जा रहा है, गो के सोशल मीडिया तक महदूद है, लेकिन अब अच्छा नहीं लग रहा है ये बात कहते हुए कि ये तो हुकूमत खुद करवाती है इस किस्म की चीज़ें, क्योंकि 8 फरवरी के एहतजाज से खाइफ थे, इस किस्म की बातें भी हो रही हैं। क्या कहेंगे, वाक़या अफसोसनाक है और अब तक पेशरफ्त क्या हुई है तहकीकात के हवाले से? जी बिल्कुल, सबसे पहले तो मैं जो ये वाक़या हुआ है इस्लामाबाद का, इस इंसिडेंट का मैं भरपूर मज़म्मत करता हूँ। और ये सिर्फ और सिर्फ वो कहते हैं ना कि एक इंसान का कत्ल पूरी इंसानियत की कत्ल है। और दहशतगर्द की और फितना अल खवारिज की, दहशतगर्दों की कोई ना मज़हब है, ना कोई दीन है, ना कोई कास्ट है। इसको आप बिल्कुल मुसलमान नहीं कह सकते, ये इस्लाम से खारिज है, ठीक है। और सेकेंडली बात मैं इसको ये कहूँगा कि इसके ऊपर अभी दहशतगर्दी के ऊपर और किसी के जानों की, किसी शहीदों के ऊपर जो है सियासत करना और उसको ये कहना कि ये हुकूमत कर रही है, ये तो मेरे ख्याल में बिल्कुल आउट ऑफ द वे और बिल्कुल मतलब इंसानियत से गिरी हुई बात है। ऐसी गलीज बात करना मेरे ख्याल में लानत में बैठता हूँ ऐसे बंदों के ऊपर जिसने ये नैरेटिव बिल्ड करने की कोशिश की है कि ये हुकूमत कर रही है। क्या ये इम्कान है या क्या ये मुमकिन है, क्या ये पॉसिबल है कि कोई अपने ही बच्चों को मरवाए, और वो भी जो है एक इमाम बारगाह पे जो है ऐसे एक इंसिडेंट हो जिससे जो है दर्जनों अफराद शहीद हो जाए? ये बिल्कुल गलत है। जलाल साहब, ये वो आपके इल्म में है, सोशल मीडिया पे कौन करता है, बैरून मुल्क बैठे हुए हैं वो लोग ये इस किस्म के बयानिए बनाने की कोशिश कर रहे हैं? बिल्कुल मैं इसी बात पे आता हूँ। अच्छा, सेकेंडली जो है बदकिस्मती से हमारा जो सूबा है ये दो एक मुसीबतों में जकड़ी हुई है। एक फितना अल खवारिज है और दूसरा फितना अल इमरानिया है। अच्छा, तो जब तक फितना अल इमरानिया ख़त्म नहीं होगा तो मेरे ख्याल में फितना अल खवारिज का भी ख़त्म होना जो है मुश्किल है। और बदकिस्मती से ये जो है सियासी तौर पे जैसे अब मैं वो लफ्ज इस्तेमाल नहीं करना चाह रहा जो बानी पीटीआई के लिए आपने इस्तेमाल किए, उसका सियासी खात्मा कैसे करेंगे फिर आप? ये जो मैं कह रहा हूँ ना, ये जो जिस तरह की जो है ये ऑपरेशन का मुखालिफत करते हैं और ये कहते हैं कि ऑपरेशन को हम नहीं होने देंगे और डंके की चोट पे जो है हम ऑपरेशन की मुखालिफत कर रहे हैं और नहीं होगा, तो इसका तो साफ वाज़ेह पैगाम है इनकी तरफ से कि ये जो फितना अल खवारिज है, जो ये इंसिडेंट लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन है, इनकी डायरेक्ट जिम्मेवारी जो है इस इंतशारी टोले के ऊपर पड़ती है। और मेरे ख्याल में आगे जो है हमें जो है इस चीज़ पे बाकी जो है लोगों की जानों के ऊपर सियासत करना खुदारा बंद करे। हमें जो है ज़रूरत है इस वक्त लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज के साथ जो है डट के खड़े होने का, ताकि उनको बेहतर पता है कि वो आईबीओ करते हैं, इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन करते हैं या टारगेटेड ऑपरेशन करते हैं या फुल फ्लेज मिलिट्री ऑपरेशन करते हैं। ये उनका इख्तियार है बिकॉज दे आर टेक्निकल, हम टेक्निकल नहीं है। तो इसमें जो है ये कहना कि हम इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन करने दे रहे और मिलिट्री ऑपरेशन नहीं करने दे रहे, और भाई बाबा आपके साथ इख्तियार क्या है? सबसे पहले तो आईन ने आपको ये इख्तियार नहीं दिया है कि आप एक मिलिट्री ऑपरेशन को रोक सके या उसमें जो है मुदाखलत कर सके। तो ये मेरे ख्याल में इनको जो है अभी थोड़ा जो है सोचने की ज़रूरत है और थोड़ा जो है सुलझा हुआ फैसला लेने तो थोड़ी संजीदगी की ज़रूरत है इनको कि ये थोड़े संजीदा हो जाए। और मेरे ख्याल में अभी जो है हमारे चीफ मिनिस्टर साहब को पता भी लग गया है और वो गुड बॉय बन चुके हैं। उन्होंने जिस तरह एपिक्स ये मालूमात की बुनियाद पे आप कह रहे हैं कि वो गुड बॉय बन गए? मुझे ये फील वाइब्स आ रहे हैं कि वो गुड बॉय बन चुका है। और उन्होंने जो है जिस तरह जो है प्राइम मिनिस्टर के पास जाके अपने बानी के बारे में जो है कोई जिक्र नहीं करना और अपने पॉलिटिकल सियासत के हवाले से। ठीक है जलाल साहब, ये तो हो गई दहशतगर्दी का वाकया हुआ। उसके बाद पंजाब हुकूमत बसंत की जो सरकारी सतह पर तकरीबात थी वो सारी मनसूख कर दी है, जो कि एक अच्छा अमल ज़ाहिर है, इतना बड़ा सानिया हुआ है। अब कल की क्या तैयारी है?
وہ ہڑتال جو تحریک انصاف نے اناؤنس کر رکھی ہے وہ ابھی تک اسے سٹیپ بیک نہیں کیا انہوں نے. وہ اسی طرح وہ کہتے ہیں کہ ہڑتال ہوگی, بائیکاٹ ہوگا اور شام کے بعد ریلیاں نکلیں گی. مختلف تحریک انصاف کے رہنماؤں سے سنا ہے. تو ویسے بھی سنڈے کا روز ہے, اتوار کے روز بند ہوتی ہیں مارکیٹس بڑی, تو حکمت عملی کیا ہے؟ اگر کوئی بڑی شاہراہ بلاک کرتی ہے تحریک انصاف تو کیا حکومت تیار ہے؟ جی بالکل. یہ اگر کل کا روز جو ہے پروٹیسٹ کرتے ہیں اور پرامن طریقے سے پروٹیسٹ کرتے ہیں, یہ ان کا جو ہے آئینی حق ہے, ان سے یہ حق ان سے کوئی نہیں چھین سکتا ہے. اچھا, لیکن اگر یہ جو ہے انتشار کی طرف جاتے ہیں اور پروٹیسٹ کو جو ہے مارو اور پیٹو اور گراؤ کی طرف جاتے ہیں, جلاؤ گراؤ کی طرف جاتے ہیں, تو پھر حکومت بھی تیار ہے, پھر ان کو ڈنڈے کھانے پڑیں گے اور پھر الٹے پیر ان کو بھاگنا پڑے گا. ماضی میں بھی جو ہے ان کی طرف سے, جب اس سے پہلے چیف منسٹر صاحب تھے, انہوں نے جو ہے کافی دفعہ کوشش کی ہے جلاؤ گراؤ کرنے کی, لیکن الٹا پھر 11 ضلع کراس کر کے جو ہے واپس اپنے صوبے گئے. تو یہ اگر اس طرح کی کوئی ایکٹیویٹی, جو کہ یہ چاہتے ہیں کہ 9 میں جیسا واقعہ دوبارہ ریپیٹ ہو جائے, لیکن ایسا کوئی نہیں ہوگا. ہم نے بھرپور قسم کی تیاری کی ہے, اور اگر پرامن طریقے سے پروٹیسٹ کرتے ہیں, یہ ان کا آئینی حق ہے, کرے, ایک دفعہ نہیں 100 دفعہ کرے. یا بسم اور اللہ. یہ اس دہشت گردی کے واقعے کے بعد جو خواجہ آصف صاحب وزیر دفاع ہے, ان کا ایک بیان کہ سختی سے نپٹا جائے گا, آئینی ہاتھوں سے نپٹا جائے گا. کوئی میٹنگز ہوئی ہوں گے, ظاہر ہے وزیر داخلہ سارے بیٹھے ہوں گے سر جوڑ کے کہ وفاقی دارالحکومت تک کیسے پہنچ گئے. تو اگلے 2-4 مہینوں میں ہم دیکھیں کہ دہشت گردوں کے خلاف شدید ایکشن کے امکانات میں کہوں یا ایکشن ہونے والا ہے, اور ساتھ ساتھ یہ بھی اگر یہ آپریٹ اسی طرح افغانستان سے ہو رہے ہیں تو پھر وہاں جا کے بھی ٹارگٹ کرے گی حکومت پاکستان, یہ بھی فیصلہ لے گی. بالکل. الحمدللہ ہماری جو آرم فورسز ہے پاکستان کی, دنیا کی ٹاپ 10 آرم فورسز میں آتی ہے. ہماری جو انٹیلیجنس ایجنسی ہے, ایجنسیز ہے, یہ جو ہے دنیا کے ٹاپ ایجنسیز میں آتی ہے. اگر ہمارے آرم فورسز کو ضرورت ہوئی کہ ہم ملٹری فل فلیج آپریشن کریں تو وہ بھی کریں گے, اور ڈنکے کی چوٹ پہ کریں گے. اگر ان کو ضرورت پڑی کہ ہم انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن کریں گے, وہ بھی کریں گے. کسی کا باپ ان کو نہیں روک سکتا ہے. جو یہ بڑھ کے مارتے ہیں کہ ہم روک کے دکھائیں گے, یہ ان کے ساتھ کوئی نہ آئینی اختیار ہے اور نہ کوئی ان کو کسی لوگوں نے اختیار یہ دیا ہے کہ یہ آپریشن کو روک سکے یا اس میں مداخلت کر سکے. تو اس بے جا جو ہے غلط پروپیگنڈا اور غلط بیانیہ بنانا اور اس کو پھیلانا اور اس کے اوپر جو ہے لوگوں کی جانوں کے اوپر سیاست کرنا, یہ میرے خیال میں باقی ان کو بند کرنی چاہیے. اس میں جو ہے ان کی لیے خیر ہے اگر یہ بند کریں. ٹھیک ہے سبین صاحب, جس طرح تقریبات منسوخ کر دی گئیں, آپ کہہ رہی ہیں چونکہ یہ ہڑتال ہے تو یہ 2-4 دن بعد اگر کر لیتے, اتوار کے روز تو ویسے ہی سارا کچھ بند ہوتا ہے, تو منڈے کے روز یا منگل کے روز ہم آپ کہتے ہیں کہ مارکیٹیں بند کر دیں 8 فروری کے احتجاج کی وجہ سے, اور مارکیٹیں بند ہو جاتی تو اس سے آپ کی پاور کا پتہ چلتا. تو اب پتہ کیسے چلے گا کہ مارکیٹیں آپ کے کہنے پہ بند تھیں یا اتوار کے روز ویسے ہی لوگ بڑی مارکیٹس بند ہوتی ہیں؟ تو ہڑتال کی کیسے آپ کامیاب ہوئی, اسے کیسے بتائیں گے عوام کو آپ؟ اچھا دیکھیں, پہلی بات تو یہ ہے کہ انہوں نے کہا نا, ایک تو گڈ بوائے کا میں جواب دے دوں سب سے پہلے ان کو. گڈ بوائے کون ہے؟ گڈ بوائے جو ہے نا سب کو پتا کون ہے اس ٹائم, ٹھیک ہے. گڈ بوائے ان کو بھی پتا کون ہے. جب یہ گڈ بوائے بنتے ہیں نا تو سب ان کو سب کچھ مل جاتا ہے گڈ بوائے کے بعد, گڈ بوائے بننے کے بعد. تو میں اس وقت ذکر نہیں کرنا چاہتی گڈ بوائے کون ہے. اور جو یہ اور بہت ساری باتیں میرے پاس جو انہوں نے باتیں کہی تھی, میں آپ کو پہلے آپ کی بات کا جواب دے دوں, ٹھیک ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ 8 فروری ہماری ہڑتال جو ہے, ہم نے کچھ سنڈے کو نہیں کی, ہم نے کچھ سنڈے, ہماری 8 فروری کی ہڑتال ہے. 8 فروری کیوں ہے ہماری؟ 8 فروری کو ہمارا مینڈیٹ چھینا گیا تھا. ہم نے تو 8 فروری کرنی تھی, چاہے وہ ہفتے کو آتا چاہے جمعے کو آتا. اصل میں تو ہمیں حیرانگی ان سے ہوئی کہ انہوں نے بسنت 8 فروری کو رکھنے کی کیا ٹوک بنتی تھی. مجھے صرف ایک بات بتا دیں, بسنت کے لیے بھی ہوا بھی ٹوٹ ہوئی ہے. وہاں جتنے لوگ ہیں وہ پیسہ خرچ کر چکے ہیں, وہ کہنے کہ ہوا ہی نہیں ہے. اب بھی تو بسنت کا صحیح موسم ہی نہیں آیا. فروری کا اینڈ ہوتا ہے بسنت کا موسم بھی نہیں آیا. 8 فروری کو بسنت رکھنا حیرانگی کی بات ہے. ہمارا تو 8 فروری دینا, چاہے وہ سنڈے آئے چاہے جمعہ آئے, چاہے جو بھی دینا ہے 8 فروری کو ہمارا تو اس کے پیچھے ایک ریزن ہے. دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیں جو اتنا بڑا ثانیہ ہوا, ہم تو اس ثانیے کو, ہم تو ان کے ساتھ سوگ میں بھی شامل ہے نا, سوگ میں شامل ہے. یہ جو ہمارا یہ جو شٹر ڈاؤن ہڑتال ہے یہ سوگ میں بھی ہے. یہ شٹر ڈاؤن ہم تو اس طرح کی ریلیاں نہیں نکال رہے کہ احتجاجی ریلی صبح سے نکلے گی اور مسلم بردار ریلی جو ہے وہ سوگ میں نکالی جا رہی ہے. تو ہم تو سوگ میں شامل ہیں ان کے ساتھ. ہمارا ایسا نہیں ہے کہ ہم کی الگ سے کوئی ایسی کوئی چیز کرے جس سے کسی کو
नुकसान होगा। शटर डाउन हड़ताल है वो 8 फरवरी की है, लेकिन अफसोस की बात यह है कि बसंत की जो एक्टिविटीज है, एक तो बसंत की कोई 8 फरवरी को रुकनी थी, वो चलो की गई जो भी हुआ। इसके बाद बसंत की एक्टिविटीज को शाम को मंसूख की गई, उससे हालांकि धमाका दिन को हुआ। उसके बाद इनके मिनिस्टर की वीडियोज आई हैं कि वो गुड़ियां उड़ा रहे हैं, उसको कोई इसकी परवाह नहीं थी, वो कीड़े टुकड़े क्या परवाह है अवाम की। तो सरकारी तकरीबात तो मंसूख कर दी गई थी, मगरिब के वक्त ये बता दिया गया था कि सरकारी तकरीबात सारी मंसूख कर रहे हैं। जब अब हाँ बहुत अच्छी बात है, शाम को जो प्रेशर पड़ा है ना उनके ऊपर, तो शाम को तकरीबात वगैरह फिर सारी मंसूख की, उससे पहले नहीं की थी, ठीक है। और शाम को तकरीबात की बसंत तो है। आप ये कहना चाह रही हैं कि पंजाब हुकूमत ने ये जो कैंसिल किया है तकरीबात, ये प्रेशर की वजह से की है, खुद से नहीं करना चाहते? क्योंकि उसके बाद की वीडियोस है, उसके बाद की वीडियोस है गुंडियों वगैरह उड़ाने। चले मैं इस पे आप ये सवाल कर लेता हूँ कि इसी तरह जैसे ये सानिया हुआ, उन्होंने प्रेशर की वजह से वो तकरीबात खत्म कर दी, आप भी प्रेशर की वजह से ये हड़ताल आगे बढ़ा देते? हड़ताल आप कैसे आगे बढ़ा देते? हमारी तो 8 फरवरी का दिन है ना, मैं आपको क्या समझा दूं? हमारा तो नहीं, 8 इलेक्शन फरवरी में का हड़ताल है। इलेक्शन चोरी हुआ जो आपका मौकिफ है, वो तो एहतजाज किसी वक्त भी हो सकता है ना। क्या से मनाना चाहते हैं हमारी हड़ताल तो एक आम और ये हड़ताल जो है उनकी तरफ से भी जो है अनाउंस हो गई है, जिनके इतने लोग गए हैं, इतने शहीद हुए, उनके साथ ही मिलके हम कर रहे हैं, हम कोई अलग से नहीं कर रहे। अगर वो कहते कि आप ये हड़ताल मंसूख कर दें, हमें कोई परेशानी हो रही है इसकी वजह से, तो हम जरूर कर देते। तो ऐसे हमारी हड़ताल से जब हम तो मिलके कर रहे हैं, उनके साथ क्यों में सोच बना रहे हैं हम तो। हमारी हड़ताल का तो इससे कोई वो नहीं है, हम कोई खुशियां तो नहीं मना रहे, कोई डेस्क पे गाने लगा के तो नहीं डांस कर रहे ना छतों के ऊपर, ऐसा तो कुछ नहीं है। हमारी तो हड़ताल है, हड़ताल तो वैसे भी जब सोग में उसका हड़ताल ही की जाती है, तो हमारी तो सोग में हम शामिल हैं, उनके साथ शामिल है। हमारे हम जो में से आप हम पहले मना रहे थे, उसके बाद हम तो सोग में उनके साथ शामिल है, तो हमारा तो बिल्कुल डिफरेंट है। असल में तो बसंत को मंसूख करना चाहिए था, लेकिन बसंत की तो सिर्फ 1-2 तकरीबात मंसूख हुई है, वो भी शाम को मंसूख की गई थी जब बहुत प्रेशर पड़ गया, उससे पहले नहीं हुई थी। उससे पहले बहुत सारी वीडियोस देखी गई थी। तो ऐसा कुछ नहीं है जी। ठीक है जलाल साहब, अब रमजान मुबारक की आमद है और अल्लाह करे कि पूरे आलम इस्लाम के लिए खैर बरकत हो इसमें। आप इसके हवाले से जो ये वफाकी दारुल-हुकूमत में जिस तरह धमाका हुआ, उसके बाद तशवीश ज़रूर है पूरे मुल्क के अंदर कि वफाकी दारुल-हुकूमत अगर महफूज नहीं है तो मज़ाफ़ाती इलाके हैं, रमज़ान की तकरीबात, तरावी के इज्तिमात, तो किस तरह हुकूमत की हिकमत अमली होगी। खुदा ना खास्ता हम वो पुराने एरा में वापस तो नहीं जा रहे कि हर हफ्ते 2 से 3 धमाके हुआ करते थे, अल्लाह ना करे ऐसा हो। तो तैयारी हुकूमत की है कि सिक्योरिटी फुल प्रूफ दी जाएगी? जलाल साहब मुझे सुन पा रहे हैं आप? ठीक है, हमारे साथ मौजूद थे, गालिबन राब्ता मुनक़ता हो गया हमारा। तो आपका क्या सबीन साहब मुतालबा होगा रमजानुल मुबारक के हवाले से, सिक्योरिटी के हवाले से, और केपी के ज़ाहिर है वहाँ आपकी हुकूमत है तो वहाँ आप क्या इक़दाम उठाने जा रहे हैं? अच्छा मैं जवाब दे देती हूँ। इनको पीटीआई का झंडा पकड़ा देंगे तो फिर ये कहीं से भी ढूंढ लेंगे, कहीं से भी ढूंढ लेंगे और उनको ये लोग पकड़े जाएंगे। पीटीआई का झंडा पकड़ा दे उनको, तो कहने का मतलब है कि पीटीआई के लोगों को मेरी रिक्वेस्ट है कि इस्लामाबाद में और हर शहर में पीटीआई का झंडा पकड़ा दें किसे? दहशतगर्दों को? जिस तरह जिसको भी आप पकड़ा देते हैं ना, उसके बाद वो बंदा पकड़ा जाता है, उस बंदे को ढूंढ के ये फिर पकड़ते हैं। दहशतगर्द तो पीटीआई का झंडा मोहतरमा माजरत के साथ नहीं पकड़ ले, लेकिन हमें बयानात से लगता है कि दहशतगर्दों का झंडा पीटीआई ने जरूर पकड़ा हुआ है। अच्छा, दहशतगर्दों का झंडा अगर पकड़ा हुआ है तो सबसे बड़ी विक्टिम, बड़े अफसोस की बात है जो आप ये बात कर रहे हैं। ये तल्ख जरूर है लेकिन ये हकीकत है ना। 2014 में बानी पीटीआई के बयानात पढ़े हैं कि इन्हें ऑफिस खोल के दें केपीके में। बानी पीटीआई, मेरी पूरी बात सुन ले प्लीज, अगर आपने मुझे बुलाया तो मेरी पूरी बात जी सुनाए। पहली बात तो ये है कि जो बयानिया है ना, मैं आपको बयानिया इनके जो है ना उनका बता देती हूँ कि बम्बई हमले किसने कराए, किसने कहा था कि बम्बई हमले फौज ने कराए? हमने कहा था ये बात, ये तो जैसे गर्दी है, ये हमने कहा था ये बात। हमारा बयानिया हमेशा रहा है कि हम मुल्क भी मेरा फौज भी मेरी, ये हमारे। और ये जो बानी पीटीआई के ट्विटर अकाउंट से ट्वीट होते हैं आर्मी चीफ के खिलाफ, ये बयानिया किसका है? मेरी बात पूरी कर लेने दे। हमारे देखें जो मिलिट्री ऑपरेशन के हवाले से कंसर्न्स हैं, कंसर्न होना जायज है। क्यों जायज है? एक बात सुने। पहली बात तो ये कि ये हर पार्टी के केपीके की जो आवाम बैठी थी, जिरगे में बैठी थी, उसमें तमाम पार्टियों के लोग शामिल थे, ठीक है। उन सब का एक मुश्तरका फैसला था, उसमें सिर्फ पीटीआई नहीं। नंबर 1 पहली बात तो ये सुन लो, पीटीआई नहीं थी। अगर और दूसरी बात तो उसमें सारे लोगों ने एक बात की कि आप एक चीज कर करके थक गए हैं, उसको थोड़ा सा लोगों
की राय से करें, सिर्फ इतनी बात है, आप जरूर करें। मैंने तो आपको पहले कहा कि जरूर करना ही है, लाजमी है, इनको मारना तो जरूरी है, ये जो सारे दहशत। इन्हें मारना जरूरी है। चलिए ये तो आप मान लिया, मेरा वक्त, मैं 2 मिनट ऊपर चला गया हूँ अपने वक्त से। मैं मशकूर हूँ आपका। मैं कोशिश करूंगा नेक्स्ट प्रोग्राम में आपसे इस पे तफसील से बात हो सके। सबीन यूनुस साहबा तहरीक इंसाफ की रहनुमा हमारे साथ मौजूद थी। जलाल खान साहब मुस्लिम लीग नून से हमारे साथ मौजूद थे, और होने वाले अफसोसनाक वाक़े के हवाले से जो अब तक पेश रफ्त हुई है, हुकूमती मौक़िफ़ है, उससे जलाल खान साहब ने हमें बताया। और PTI का कल होने वाला एहतजाज या हड़ताल, उसे मुख्तलिफ नाम दिए जा रहे हैं, वो किस हद तक कामयाब होगा, क्योंकि कल इतवार का रोज़ है, मार्केट्स वैसे ही बंद होती हैं, और जो रोज़मर्रा ज़िंदगी के मामूलात होते हैं वो 70% पाकिस्तान में मुअत्तल होते हैं। तो अब देखना ये है कि तहरीक इंसाफ कितनी कामयाब होती है, और क्या उन मार्केट्स का इतवार के रोज़ की वजह से बंद होने को अपनी कामयाबी करार दिया जाता है। ये तो वक्त बताएगा। इरफान हैदर को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।